This is the part 2. Welcome to the video. Please watch the video concentrately, pay attention toward it, and try to understand each and every concept briefly. If you have any doubt regarding any topic, kindly ask me. Right? Let's start the topic. Already in this chapter, in this topics, we have discussed different route through which a federation can be formed. Till here we have discussed. Today we are going to discuss that what make India a federal country. That is our topic 2. That means part 2 we are going to discuss today. These are all the points which we have discussed yesterday, and here the question comes that after independence, what makes India a federal country? When our country got independent, our country was divided into several princely states. That means you know that few areas are there where the water direct rules were there. That means let me make you understand what the thing was. During the British rule, complete India is divided into two parts. Some areas were ruled by the Britishers directly. They were what direct control over the British, and some areas are there where princely states. That means kings were ruling that area. That means that we can say puppet rulers of the Britishers were ruling that area. They have the autonomy to rule that area, but anyway finally that area, all the areas comes under British, but some areas were ruled by the British and some areas ruled by the princely state. When our country got independent in 1947, the areas which was ruled by directly by the Britishers, that comes under directly Indian government, but some areas which were ruled by the princely state, they were not agree to join the Indian constitution. That means Indian federal, we can say one country united. They don't want to be united with the country. That union of state नहीं बनना चाहते थे वो. तो इन दैट केस क्या हुआ, कुछ स्टेट थे प्रिंसिपल स्टेट वो खुद आ गए थे, और कुछ स्टेट ऐसे थे जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, और हमारा जम्मू कश्मीर हो गया. ऐसे ये तीन कुछ स्टेट थे, वो स्टेट खुद ब खुद इंडियन यूनियन में मिलने के लिए नहीं आए थे. तो एनीवे द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर किया गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब सभी स्टेट को मिला के इंडिया बनता है. दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज वर्ड फेडरेशन, हमने फेडरेशन वर्ड को यूज नहीं किया. द इंडियन यूनियन बेस्ड वाज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है. एज पर द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव, इससे पहले we can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. जो 7 फीचर हमने देखा, वो 7 फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया जैसे फेडरल कंट्री के लिए ये प्रोविजंस अप्लाई होते हैं. वो सभी चीजें हम फॉलो करते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब मेंशन्ड है. तो ये सबको फॉलो करने के लिए हमको क्या करना है, 3 लिस्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि एज पर दैट जो 7 फीचर्स ऑफ फेडरल हैं उसमें जो स्टेट सेंट्रल होंगे, स्टेट सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट होंगी, जुडिशियरी होगा, ये सब चीजें हैं. तो ये सब किस किस का जुरिडिक्शन है, ये सब जानने के लिए हमको 3 लिस्ट तो बनाना पड़ेगा. वो 3 लिस्ट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि किसका जुरिडिक्शन किस में आता है, कितना कौन से एरिया में आता है. जैसे आपका एक हो गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ये यूनियन लिस्ट क्या है, लेट्स सी इट. यूनियन लिस्ट subject of national importance like defense, foreign affair, autonomy, foreign affairs, autonomy, energy, banking, post and telegraphs are included in the union list. Only the central government can pass law on the subject mentioned in the union list, because we need a uniform policy on important or national issue throughout the country. The union list has 97 subject. ये आपको समझ के रखना है कि क्यों ऐसा, आप मान के चलो कि पैसा ऐसा होता है कि हर स्टेट, जो हमारे जितने भी स्टेट है, पूरे स्टेट अपना क्या करते हैं, पैसों का एक हिसाब रखते हैं. देखिए पैसा अपना छापते हैं, तो क्या होता है एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारे करेंसी हो जाती है, और कभी भी इंडिया एक यूनियन कंट्री नहीं होता या एक यूनाइट कंट्री नहीं होता. यूनाइट कंट्री नहीं होता, भारत भी टुकड़ों में बंटने की चांसेस थी. इसीलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसको सिर्फ सेंट्रल को ही दिया गया पावर कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल ही डिसीजन ले सकता है, जिसको हम बोले यूनियन लिस्ट. जो पावर सेंट्रल के पास है या सेंट्रल ही उसको डिसीजन ले सकता है
उसके अलावा कोई नहीं। ऐसे 97 सब्जेक्ट है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है, वो किसी को कुछ नहीं पूछेगा, उसके ऊपर जो डिसीजन लेना है वो लेगा, राइट। अभी उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या है? इट कंप्राइज दोज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ, सब्जेक्ट लाइक police, local government, trade and commerce, agriculture within the state are included in the state list। जो स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर है उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया, मतलब मान के चलो स्टेट के अंडर में जो एग्रीकल्चर आती है या स्टेट जिसको फाइनेंसिंग करता है या लोन देता है या उसको देखता है, वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएगी। सेंट्रल के अंतर्गत भी आएगी। सेंट्रल एरिया में जो जमीन होगी, सेंट्रल मतलब हर स्टेट के अंदर कुछ जमीन ऐसे होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन के अंदर जो भी आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। द स्टेट लिस्ट हैज हाउ मेनी सब्जेक्ट? 66 सब्जेक्ट्स आर देयर। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जो स्टेट एंड यूनियन दोनों मिलके उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, एक दूसरे के बिना नहीं डिसीजन होगा, एक दूसरे को पूछना पड़ेगा। तो देखो क्या है, द कॉन्करेंट लिस्ट कंप्राइज of the subject which are common concern both the central and state governments। Ordinarily, both the central and state government can frame laws on this subject. However, if there is a conflict between the central law or state law over the subject in the concurrent list, the central law would be effective। कोई भी प्रॉब्लम आती है या वो कॉन्ट्राडिक्शंस होती है स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ में, तो सेंट्रल लॉ जो बना होगा उसी को ही माना जाएगा, ना कि स्टेट के लॉ को माना जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। दिस लिस्ट इंक्लूडेड सब्जेक्ट लाइक क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर्स, मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एटसेट्रा। और द कॉन्करेंट लिस्ट हैज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 47 सब्जेक्ट्स। बात समझ गए? 47 सब्जेक्ट, 97, 66 एंड 47। ये तीनों के बीच में आपको डिसीजन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात आता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। दिस थ्री थिंग्स मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंडिया फेडरल है कैसे पता चलेगा? इक्वली सभी के बीच में पावर को या उनकी जो जुरिडिक्शन है वो एरिया को बांट दिया गया है, इसीलिए हम इंडिया को क्या बोल सकते हैं? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। दिस मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इसके बाद कुछ लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ चीजें हैं। ये लिस्ट में भी आपको वही चीजें मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ कुछ दिया गया और 97 बता दिया गया था। तो इसमें आप अपने आंसर राइटिंग के लिए इससे आप कुछ पिक कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा या आपके लिए अच्छा होगा एक आंसर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है और एक कॉन्सेप्ट रेसिड्यूअरी। ये रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट क्या है बेटा? आप देखना जो 97 ये जो आपने आंकड़ा हमने देखा, ये आंकड़ा बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आंकड़ा सब बांट दिया गया है। अभी आप देखना ये जो पीछे लिस्ट में दिखा है 3 लिस्ट में रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? कोई बैंक क्या हो गया, ऑनलाइन चोरी का कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कुछ ऐसे चीजें थी जो चीजें इन्वेंशन हुई ही नहीं थी, तो उस समय उसको हम किसी भी लिस्ट में नहीं डाल पाए थे, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी ऑनलाइन चोरी होती है, फोन पे के जरिए चोरी होती है। 1947 में फोन पे था क्या? नहीं था। तो उसको उसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा, कौन लॉ बनाएगा, कौन कार्रवाई करेगा, वो तो किसी लिस्ट में नहीं दिया गया। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या किया गया? रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट बोल के बनाया गया। जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, 1984 की बात है, सॉरी 84-86 की बात है, जब इंदिरा गांधी मरी उसके बाद राजीव गांधी बने प्रधानमंत्री। जब उनने लाया टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो बोला जाता है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी के पीरियड में आया हुआ है। उसी समय क्या हुआ, ये रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट को भी लाया गया, उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है वो सब ये है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ दिस 3 लिस्ट? सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू legislate on this रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। जो रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट आएंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिसीजन
लेगी। इसके बाद आता है हमारे भारत में एक यूनियन टेरिटरीज, वो किसके अंतर्गत आते हैं? जैसे स्टेट और सेंट्रल के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, स्टेट का क्या ज्यूरिडिक्शन है, सेंट्रल का क्या ज्यूरिडिक्शन है, मगर जो यूनियन टेरिटरीज है वो किसके ज्यूरिडिक्शन में आएंगे? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज इतने छोटे एरिया हैं ना कि वो इंडिपेंडेंट छोड़ दिए जा सकते हैं, ना इतने बड़े हैं कि किसी दूसरे स्टेट में उसको मिला दिए जा सकते हैं। क्योंकि सुनो, मिलाने के लिए वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, और उनको खुद इतने बड़े भी नहीं है कि उनको एक स्टेट घोषित कर दिया जाए, इसीलिए वैसे छोटे छोटे एरिया को छोड़ दिया गया, उसको फाइनली सेंट्रल ने अपने पास रखा, जिसको यूनियन टेरिटरीज बोल दिया गया। मतलब क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पावर है उसके ऊपर, वो एरियाज को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखता है। और दिल्ली को क्यों बनाया गया? दिल्ली देश का कैपिटल है, उसको किसी को छोड़ देंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरीज पे रखा गया। तो यूनियन टेरिटरीज वाली कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गई आप लोगों की। इन केस ऑफ एनी dispute about the division of power, the high court, the supreme court make decisions। मतलब कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, राइट। उसके बाद आपका आता है दूसरा टॉपिक, वो कौन सा है? दूसरा टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन आवर कंट्री। फेडरलिज्म हमारे कंट्री में कैसे प्रैक्टिस हुआ है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।